ہو رہی ہے، ہر آنکھ بالکل بالکل، بے یہ شک فرق ہوتا ہے، بے کیونکہ ہم شک۔ لوگوں نے اپنے معاشرے میں دیکھا نہیں ہوتا نا، اپنے بچوں سے جدائی، اپنے تو ان کے تو 18 سال کے بعد جدائی ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں پہ اتنا اثر جی نہیں جی پڑتا، وہ خوش رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ فری میں مل رہا ہوتا ہے، ان کو کمانے کے لیے نکلنا نہیں پڑتا ہے، نہ بچوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، نہ ان کو کسی کی کوئی ہوتی ہے، وہ اس میں بہت مگن اور بے پناہ ہیپی رہتے ہیں۔ جی سامعین، یہ تھا بالکل بالکل مجھے جی۔ افسانہ قدسیہ قدسی صاحبہ نے پیش کیا، میں ملتمس ہوں ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے کہ آپ اپنا افسانہ پیش کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب، آپ بھی شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے اکثر ان کی ہم نظمیں اور غزلیں، خاص طور پہ نثری نظمیں ان کی بے حد عمدہ ہوتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا افسانہ پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ کسی میرے کے پاس افسانے سے کا عنوان ہے جی جی بساط، اتحاد۔ اور یہ آج کی صورتحال پر جانا مانا ہے کہ میں بھیڑ کا تنہا مسافر، اپنے واہ، اجداد کی لاپرواہیوں کا خمیازہ بھگتتا ہوا اپنے وجود کی سلیب اٹھائے تاریک دوراہے پر کھڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ شانتی کی تلاش میں ناکامی ہی میرا مقدر ہے، یا سوال کے الفاظ ڈکشنری کے تابوت میں بند ہوئے جاتے ہیں اور مجھے شانتی کی تلاش ہے، مگر شانتی کہیں نظر نہیں آئی۔ ہر پناہ گاہ کے ارد گرد خونخوار بھیڑیے چھپے بیٹھے نظر آتے ہیں، چیختے کراہتے لوگوں کی ٹوٹتی بکھرتی آواز، اور اس آواز کی گونج کے دائرے میں گھرے ہوئے لوگوں کے درمیان شانتی کی کھوج میں نکلا ہوا میں، دوڑتا ہوا میں، دوڑتے دوڑتے ایک اجنبی بستی میں داخل ہوا تو رات اتر چکی تھی۔ ایک خوفناک درندہ اپنی خونی دانت نکالے ہوئے دہاڑ رہا تھا، بستی کے ہر فرد کا سر اس کی ہتھیلیوں پر تھا، اور پوسٹل والا مرد مسکرا رہا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لاشوں سے تعبیر کیا جانے والا مینار میری نگاہ کا مرکز بنا ہوا ہے، 6 انچ چھوٹا کرنے کا کام جاری ہے، تشدد کی آگ پھیلانے والوں کی آنکھوں سے خوشیاں خون کی شکل میں بوند بوند ٹپک کر دھرتی کو سیراب کر رہی ہیں، کہیں کنویں سے انسانی اجسام کی ہڈیاں نکالی جا رہی ہیں، اور کہیں ہیرے کی آنکھ اور پتھر کا جگر رکھنے والے زندہ اور باشعور ذہن کے لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس اندھیرے سے باہر نکلنے کی راہ تلاش رہے، راحت اور محافظوں کی رائفلیں انہیں تلاش رہی ہیں۔ کچھ لوگ آتنکوادی اور نکسلوادی بن گئے ہیں۔ بے حصوں کے اس جنگل میں چہار سمت لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، اور زہر کا بیپار کرنے والے قہقہا لگاتے ہوئے جنگل میں آگ لگانے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ ہوا یوں کہ جنگل جلنے لگا اور اس بستی کے چاروں طرف انسانی گوشت کی ناقابل برداشت بو پھیلنے لگی۔ پولیس والوں نے بوٹوں کی خوفناک آوازیں بھونکتے ہوئے کتوں کی آوازوں تلے دب کر دم توڑتی رہیں، اور میں ہیوم پائپ میں چھپا بیٹھا سوچ رہا ہوں، زندگی کیا ہے؟ خون کی ہولی کھیلنا، گھروں میں آگ لگا کر قہقہا لگانا، یا گھٹ گھٹ کر مر جانا۔ ہیوم پائپ کے پاس پڑا ہوا اخبار، اور اس اخبار میں فلسطینی بچیاں کی آنکھوں سے بہتا ہوا خون، اور اس خون کے ارد گرد سناٹا ہی سناٹا، اور سناٹے میں دور سے کہیں سے آتی ہوئی ماں کی آواز، اور اس آواز کو سننے والا کوئی۔ سوالات ابھر رہے ہیں، اور چاروں طرف ویرانی اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہے۔ وحشی درندے یہاں سے وہاں تک اپنا کام کر رہے ہیں، اور جب وہ میری جانب آتے ہوئے نظر آئے تو میں وہاں سے دیوانہ وار دوڑا، اور بس دوڑتا ہی چلا گیا۔
सालों साल बीत गए और मैं दौड़ता रहा। और एक दिन जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो रोशनियों से जगमगाता शहर, सड़कों की भीड़, कारों और बसों की रेल पे सब फालिजदा होकर रह गए थे। पूरा शहर भाई भाई कर रहा था। सड़क के दोनों तरफ टेलीग्राफ के खंभे मुजस्सम उदासी का नक्शा पेश कर रहे थे, और सूखे हुए दरख्तों से झड़कर गिरे जर्द पत्तों और लटकती हुई टहनियों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, सामने एक मैदान जरूर नजर आया, जहाँ बहुत सारे लोग मोबाइल से कान लगाए जगह जगह छोटी छोटी टोलियों में खड़े धीरे धीरे बातें कर रहे थे। और मैं उन लोगों के करीब पहुंचा और बूढ़े आदमी से पूछ बैठा, शहर खामोश क्यों है बाबा? शहर खामोश बैठी का शहर खामोश क्यों है बाबा? जी। बैटरी थोड़ा डाउन हो रहा था जैसे लगा। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लाशों से तामीर किया जाने वाला मीरार मेरी निगाहों का मरकज बना हुआ है। राइफलें उन्हें तलाश रही हैं, लोग आतंकवादी बनते जा रहे हैं। शहर में दाखिल हुआ तो रोशनियों से जगमगाता शहर, सड़कों की भीड़, कारों और बसों की रेल पे सब फालिजदा होकर रह गए थे। पूरा शहर भाए भाए कर रहा था। सड़क के दोनों तरफ टेलीग्राफ के खंभे मुजस्सम उदासी का नक्शा पेश कर रहे थे। सूखे हुए दरख्त से झड़कर गिरे जर्द पत्तों की चटकती हुई टहनियों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, सामने एक मैदान जरूर नजर आया, जहाँ बहुत सारे लोग मोबाइल से कान लगाए जगह जगह छोटी छोटी टोलियों में खड़े धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं इन लोगों के करीब पहुंचा और बूढ़े आदमी से पूछा, शहर खामोश क्यों है बाबा? तुम नहीं जानते? पोस्टर वाली औरत अपने मुहाफिजों की गोली का शिकार हो चुकी है। लो पढ़ो ये अखबार। अरे ये क्या पढ़ेगा अखबार? देखते नहीं कोई पागल मालूम पड़ता है। चलो चले अपने अपने घर की खबर लें। देखते देखते सब के सब मेरी नजरों से उझल हो गए। बस बूढ़ा बच गया, जिसने सबसे पहले मुझे पोस्टर वाली औरत के कत्ल हो जाने की खबर सुनाई थी। बूढ़े के चेहरे से वहशत और खौफ का तूफान उमड़ पड़ा था। मैं एकटक उसे देखता रहा। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, मगर मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ चुकी थी। शायद उसने मेरे दिल की आवाज सुन ली। बोला, बेटे, ये सच है, दोस्त और दुश्मन की पहचान में पोस्टर वाली औरत धोखा खा चुकी है। हम ही में से किसी एक ने उसे कत्ल कर दिया। अब शहर में खौफ व दहशत अपना डेरा जमा चुकी है, और फजा में मौत का सन्नाटा रक्स करने लगा है। यहाँ पर ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। बुढ़ापे में ये दिन देखना बाकी रह गया था। गांव उजड़ा था तो शहर में आ बसा था। अब के उजड़ा तो कहाँ जाऊंगा। बड़ा संकट का समय है बाबा। हाँ बेटा, भगवान सबकी रक्षा करे। बूढ़ा अचानक उठा और गिरते पड़ते एक तरफ भाग निकला। मैं अब उस वसी मैदान में तन्हा बैठा, अखबार हाथों में दबोचे, बस सोचता ही चला जा रहा हूँ। मगर मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या पीपल का पेड़ याद आ रहा है, या राजस्थान के सहरा में बेदम हो जाने वाले जानवर, या बाप का हुक्म ना मानने वाला नाफरमान बेटा? पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, मगर हर बार पोस्टर वाली औरत मेरी सोच बनी हुई है। नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। चेहरों की ये अलगार, बकरी का दूध पीने वाला, उसका कातिल,
दमादम मस्त कलंदर, टकसाली जनरेल, पोस्टर वाली औरत और उसका मुहाफिज। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। शहरों की एलगार जारी रही और पोस्टर वाली औरत के कत्ल की खबर आग की तरह फैलती रही। अचानक से ससकती, दम तोड़ती, कर्बनाक आवाजें, उभरती डूबती सिसकियां फजाएं फजा में उभरी। शहर में हर शख्स एक दूसरे से खौफजदा, जांच यमा मांगता हुआ बस भागता जा रहा था, क्योंकि आदमी आदमी का दुश्मन हो चुका था और चारों तरफ लूट मार जारी थी। और फिर हुआ यूं कि पोस्टर वाली औरत की जगह लेने वाला मर्द पोस्टर के बीच से झांकता हुआ लंका के मुतल्लिक सोचने लगा। यहाँ फिर कोई हनुमान जी पैदा हो गए हैं, मगर हम कहाँ जा रहे हैं। सोचते सोचते मेरे जहन में एक सवाल उभरा, और मैंने जब लोगों से अपने सवाल का जवाब मांगा तो लोग खुद सवालिया निशान बन गए। मगर एक नौजवान अपने आप को ना रोक सका, बोल पड़ा, जहन्नम में। उसका जवाब सुनकर लोग कहा लगाते हुए आगे बढ़ गए, और मैं अपने जहन में इस तरह के लातादार सवालात का बोझ अपने कांधों पे लिए अपने हड्डियों के ढांचे को घसीटता हुआ जब सहरा की वसतों में दाखिल हुआ, तो बूढ़े बरगद का एक पेड़ नजर आया, जिसे देखते ही आराम करने की ख्वाहिश ने सर उभार दिया। और जब मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा तो वहां एक बारिश बुजुर्ग आसन जमाए हुए थे। मैं उस बारिश बुजुर्ग के करीब से गुजरने ही वाला था कि उनकी आवाज मेरे पर्दे समाज से टकराई। वो कह रहे थे, बच्चे किधर को जाता है, आगे सख्त अंधेरा है, और उस अंधेरे में हर चीज अपनी पहचान खोती चली जा रही है। आओ, मेरे करीब आओ, देखो मेरे हाथों में क्या है। बाबा, आपके हाथों में तो दो प्याले हैं, एक में खून भरा है और दूसरे में पानी। बच्चा, तुमने ठीक पहचाना, ये वही खून है जो चारों तरफ कोने कोने में बह रहा है और खेत खलियानों में पेवस्त होता जा रहा है। और ये दूसरा प्याला आंसुओं से भर गया है। तुम जानते हो ये खून किसका है और आंसू किसका है? मैंने कहा, कहीं आज तक खून और आंसू की भी पहचान की जा सकी है? तो फिर लोग खून और आंसू में फर्क क्यों करने लगे हैं? मैं क्या जानूं बाबा, मैं तो खुद शांति की भीख मांगता फिर रहा हूँ। तो बाबा बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, तुझे शांति की तलाश है? तो सुन, अलिफ लाम मीम सिफर में गुम हो चुका है, जिसकी गोल्डन जुबली भी मनाई जा चुकी है। और बाबा लोग, वो तो परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी पर सवार सारा दिन धूप की कहानी कहते कहते हमेशा हमेशा के लिए सो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि ऐसे पड़ रहा है शब्द, एक बारिश में घिरा मकान, अगर वो घने जंगलों में तुझे नजर आए तो वहां रुक जाना। बारिश में घिरे मकान से होकर रास्ता आग का दरिया तय करता है। तब गर्दिश रंगे चमन की हकीकत और अमावस में दिखे खाक की ताबीर समझ में आएगी। तब्दील होती दुनिया में तीसरी आंख खुली रख, और याद रख के शांति की खोज में आग का दरिया संगे मील है, संगे राह नहीं। तुझे तो अपनी मंजिल उसी को जानना है, क्योंकि नियों की ईंट हमारी है और हमारी ही रहेगी। सुई की नोक पर लम्हा रुका हुआ है, गूंगे बोलने लगे हैं, अखलाकी पस्ती का दौर है। बारिश बुजुर्ग बोलते बोलते चुप हो गए।
और फिर हुआ यूं कि मैंने समाज की कुंडी हिलाई, चौंका, ठिठका, और जब मेरे अंदर एक नई ताकत ने करवट ली तो मैं वहां से उठा और हिचकोले खाती उस कश्ती पर सवार हो गया जिस पर फाख्ता, कबूतर, बुलबुल और मोर पहले से बैठे थे। मेरी कश्ती हिचकोले खा रही है, पोस्टर वाली औरत मर चुकी है, पोस्टर वाला मर्द मुस्कुरा रहा है, कुत्ते तैरते हुए मेरा पीछा कर रहे हैं, और जहां तक नजर जाती है तूफान के आसार नजर आते हैं। माँ अपने बेटे के इंतजार में बैठी है, और बेटा तू देश हंसी खुशी के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, मगर मुझे तो अपना सफर जारी रखना है, क्योंकि सवाल मेरा नहीं, सवाल फाख्ता, कबूतर, बुलबुल और मोर का है। उन्हें तो किसी तौर बच ही जाना चाहिए। अख्तिताम से जी, बहुत उम्दा खूबसूरत लफ्जों की बहुत मेहनत खूब के माशाल्लाह। साथ अफसाना पेश किया गया है। जी हाँ, बहुत उम्दा। बस जरा तवील हो गया। वो असल में हमारे यहाँ जो होता है वो 10 मिनट दिए जाते हैं अफसाने के लिए, तो उससे जरा थोड़ा सा तवील हो गया, लेकिन बहुत इंशाल्लाह। खूबसूरत। जी डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा अफसाना आपने पेश किया, खासतौर पे बहुत जबरदस्त। लफ्जों की बुनत का जवाब नहीं है आपकी। जी, बिल्कुल। मोहतरमा शाहिदा बेशक। सरकार से मुल्तमिस हूँ कि आप अपना तबसरा पेश करें ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत उम्दा। शायदा आपका वो बंद है, माइक बंद है आपका। अब ठीक है। जी जी। अच्छा, मैं तो ये कहूंगी तबस्सुम जी के डॉक्टर साहब का अफसाना इस कदर खूबसूरत कि हम खो बहुत गए। उम्दा। शहर खामोश क्यों है बाबा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब की खूबसूरत पुरदर्द और दुख भरे अल्फाज में ही मिल जाता है, जिसमें बहुत सी मिसालें भी हैं, जिसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें भी हैं, जी हाँ, जिसमें हिंदू मजहब के भी कुछ उसमें खास मिसालें दी हैं उन्होंने। बिल्कुल मैं बिल्कुल। कहती हूँ बहुत खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात कि हमारे फलस्तीन की कहानी, कश्मीर की कहानी और दुनिया भर में फैली हुई वो जगहें जहाँ पे जंगें छिड़ी हुई हैं, जहाँ पे अमन नहीं है, जहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, उसका जिक्र। और हालात के पेश नजर जो मंजर कशी इन्होंने किया, ऐसा बहुत महसूस उम्दा, हुआ कि बहुत हम उम्दा। उसमें घूम रहे हैं, जी हमारी हाँ, नजरों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी कहानी, मुझे अफसाना बहुत पसंद आया। और आपने इतने शकील अल्फाज और इतने खूबसूरत अल्फाज की बुनत आपने इसमें डाली है कि मेरे ख्याल में ये अफसाना बहुत जबरदस्त और बहुत बहुत। प्यारा अफसाना है। अल्लाह पाक आपके कलम की बरकतों में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आमीन। उम्दा, बहुत उम्दा अफसाना ये पेश जगह किया है। नवाजी है, आपकी जगह नवाजी है। और जो मोतबर शख्सियत होती है वो बहुत गहराई और गहराई से अल्लाह चीजों को हाफिज। नफीस जाने लग समझती गए। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता जी हाँ, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, जजाकल्ला। बड़ा ही मुकम्मल अफसाना माशाल्लाह पेश कर मुकम्मल रहे हैं आप। अफसाना। बहुत ही बिल्कुल। मुकम्मल अफसाना, बहुत कम वो होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि खूबसूरत लफ्जों की जो बुनत थी, तकील लफ्जों की, जैसे शाहिदा ने कहा, बहुत बहुत उम्दा। खूबसूरत। बिल्कुल। सामीन आगे ये की लग तरफ। रहा था जैसे नसरी नज्म सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। बिल्कुल जी। जी हाँ, बहुत वाह उम्दा। क्या बात है। तस्वीर नजर सुना रहे हैं। जी सामीन, अब हम चलते हैं मोहतरमा मीना इरफान की जानिब, जो हमारे साथ लखनऊ से राब्ते में है। अच्छा, सबाज भी माशाल्लाह आ चुकी हैं। जी, सबाज गुल भी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। सबाज, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी मीना, सभी आप हाजरीन माशाल्लाह। महफिल आपका को अफसाना सुन ले तो फिर हम चलते हैं इंदिरा और सबाज की जानिब। जी 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 जी। सभी हाजरीन महफिल को हमारा सलाम। और जी। आज मेरा वालेकुम जो अस्सलाम। अफसाना है उसका नाम है आटा साटा। ये आटा हमारे साटा। यहाँ पर एक सूबा है। आटा साटा इसका मतलब होता है अदला बदली। तो ये हमारे यहाँ एक सूबा है राजस्थान, हिंदुस्तान में। तो वहां पर ये एक रस्म है कि अदला बदली की शादी होती है, आटा साटा शादी कहलाती है। अच्छा, यहाँ तो विट्टा मैंने विट्टा उसको भी कहते, मीना बिहार में, विट्टा भी, विट्टा बिहार विट्टा में भी उसको, कहते हैं। अब अच्छा विट्टा अच्छा, बिहार भी में, जी जी कहते जी जी अब जी जी बिहार जी जी। तो और बिहार में उसको गोलट कहते हैं, गोलट शादी, हैं। अच्छा गोलट। अच्छा अच्छा। जी जी। तो उसकी उसी पर बहन हमारे पास और हमारी बहन उसके पास है। जी जी जी, यही यही। तो गोलट। मैं शुरू करती हूँ आटा साटा। शीला आंगन में बैठी, सास और चार पांच गांव की औरतों के साथ
गेहूं बना रही थी। फसल कट कर आ गई थी और अब छान फटक कर कंकड़ पत्थर निकाल कर उसे कुटियों में भर दिया जाएगा और जरूरत के मुताबिक मुताबिक पिसवा कर आटा इस्तेमाल किया जाएगा। शीला यूं तो गेहूं साफ कर रही थी, लेकिन उसका सारा जहन नलनी की तरफ था। उसने सूप एक तरफ रखा और उठ खड़ी हुई। उसे गेहूं बना रही औरतों को चाय देनी थी। काम के दौरान वो सबको चाय पानी कराती रहती और काम के बदले उन्हें अनाज भी दिया जाता। शीला ने बावर्ची खाना जाते जाते एक नजर नलनी के कमरे पर डाली। वो मसहरी पर दरवाजे की जानिब पीठ किए बैठी थी। शीला किचन की जानिब बढ़ गई। सबको चाय देने के बाद शीला 2 कप लेकर नलनी के कमरे में दाखिल हुई। उसने प्यार से आवाज दी, नलनी। अरे भाभी, नलनी चौंक कर मुंह घुमाया। लो चाय लो, उसने उसकी तरफ कप बढ़ा दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चाय के घूंट पीती रहीं। फिर शीला ने बात शुरू की, इस तरह कब तक अपने आप को कमरे में कैद रखोगी? कमरे से बाहर निकलो नलनी, इस तरह तो तुमने अपने आप को खत्म कर लोगी। नलनी का बदन कांपने लगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। शीला ने जल्दी से उसके हाथ से चाय का कप लेकर टेबल पर रखा और उसे सीने से लगा लिया। नलिनी रोते हुए अपनी भाभी से सवाल कर रही थी, मेरा क्या कसूर है भाभी? मैंने तो किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। सब खुश थे, फिर ये क्या हुआ? कुछ करो भाभी प्लीज। नलिनी का तड़पना देखकर शीला के आंसू निकल आए। अब वो नलिनी को क्या बताती कि उसने अपनी भरसक कोशिश की हालात को सुलझाने की और नलिनी के शौहर से बगैर किसी को बताए मिलने भी गई। उससे इल्तिजा भी की कि वो नलिनी को घर ले जाए, वरना नलिनी मर जाएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मगर नलिनी का शौहर उसको बहुत प्यार करने के बावजूद दकियानूसी फरसुदा रिवायतों की बेड़ियों में ऐसा जकड़ा हुआ था कि लाख चाहने के बावजूद अपनी पत्नी को घर नहीं ले जा सकता। समाज की इन खराब रस्म रिवाज से लड़ने का उसमें हौसला नहीं था। शीला ने नलिनी की तरफ देखा। ये 5 साल पहले वाली नलिनी तो बिल्कुल नहीं थी। जब शीला शादी होकर ससुराल आई तो नलिनी की शक्ल में उसे हर वक्त चहकने वाली प्यारी नंद मिली, जो बहन से बढ़कर प्यार करती। दोनों बेहतरीन दोस्त थीं, एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाती। नलिनी जब तक कॉलेज से नहीं आ जाती, शीला को जितनी भी भूख लगे वो खाना नहीं खाती थी। और नलिनी भी कॉलेज की एक एक बात जब तक भाभी को न बता ले उसे चैन नहीं आता। 1.5 साल बाद शीला ने एक बेटे को जन्म दिया, जो नलिनी के गले का हार था। हर वक्त वो उसे गोद में लादे रहती। फिर एक दिन गांव के पंडित जी ने पड़ोसी गांव तारापुर का एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था। खेती बाड़ी थी, किराए पर दुकानें थीं, बड़ी सी हवेली थी, माँ बाप दादा दादी और एक बहन। छोटा सा कुनबा था। लोग शरीफ थे। लड़का देखने में भी अच्छा सूरत का था। नल्ली का जोड़ था। बस एक ही अड़चन थी कि वो लोग आटा साटा चाहते थे, यानी नल्ली के दूसरे नंबर के भाई श्याम के साथ अपनी बेटी की शादी और अपने बेटे की शादी नल्ली से अदला बदली पर करना चाहते थे। हालांकि नल्ली के घर वालों को ये आटा साटा की रस्म पसंद नहीं थी। उनके सामने कई ऐसी मिसालें थीं जहां अदला बदली की शादी कामयाब नहीं हुई थी और इस चक्कर में कई बार बेमेल शादी हो जाती थी। कहीं एक जोड़ा सही होता तो दूसरा बेजोड़। शीला की सहेली का वाकया ही सामने का था, जहां उसके भाई ने एक लड़की पसंद की और जिद पर अड़ गया था कि अगर शादी करेगा तो उसी लड़की से, वरना शादी नहीं करेगा। वहां घर वाले अपने शराबी जुआरी लड़की की शादी आटा साटा में शीला की सहेली से करने पर वजिद थे। और जैसा कि मर्दों की बालादस्ती है, घर वालों ने लड़के के आगे हथियार डाल दिए और मालती की लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसको जुआरी शराबी से ब्याह दिया गया। नतीजा वही हुआ। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर मालती ने खुदकुशी कर ली। आज भी उसका मासूम चेहरा फांसी के फंदे पर झूलता हुआ नजरों में घूम जाता था। और इसी वजह से नलिनी के माता पिता और भाई इस तरह की शादी के मुखालिफ थे। मगर फिर पंडित जी और गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि ये जरूरी तो नहीं कि हर बार अदला बदली की शादी खराब साबित हो, और ये भी है कि अगर अदला बदली की शादी ना की जाए तो भी शादी नाकाम हो सकती है। शादी एक जुआ है और वैसे ऐसे रिश्ते में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। लड़की भी सुंदर थी और आखिरकार रिश्ता हो गया और नलिनी तारापुरा गांव ब्याह कर चली गई और उसकी नंद सरोज उसकी भावज बनकर उसके घर आ गई। नलिनी ने अपने अखलाक से ससुराल में सभी का दिल जीत लिया। सास ससुर दादा दादी सभी का वो ख्याल रखती और वो सब भी नलिनी को बेटी की तरह प्यार करते। पति राकेश तो उसका दीवाना था। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। मगर नलिनी के मायके में कुछ ठीक नहीं था।
सरोज मिजाज की तेज थी। घर वालों ने उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया था। घर के कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे ना तो खाना बनाना आता था और ना साफ सफाई का शौक था, और ना ही वो सीखना चाहती थी। बस वो थी और उसका मोबाइल था। शादी से पहले कई बार माँ ने टोका कि पराए घर जाना है, कुछ काम तो करना सीखो, मगर वो इस कान से सुनती और उससे शाम के फैक्ट्री जाने का वक्त हो जाता। उसे उनके चाय नाश्ते की फिक्र होती और न टिफिन देने की। शादी से पहले नलिनी के ये काम थे। वो सुबह उठकर श्याम का और अपना नाश्ता बनाती, टिफिन पैक करती,